ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਮ ਵਾਲੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਪੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਈਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਪੋर्ट आई है, वो मैं उन्होंने बेनती करूँ डॉक्टर साहब पहला सारी रिपोर्ट कर दें। माड़ा जा उच्चू थोड़े डॉक्टर साहब हिंदी में कर देंगे, चलो हिंदी च कर दो, पंजाबी च कर दो। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੂ ਬੋਲੋ, ਜਮਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੂ ਬੋਲੋ, ਮਾੜਾ ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ 5 ਰਿਵਰ ਸਾਡਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 11-12 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾਇਆ, ਉਹ ਖੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਣ ਕੇ, ਉਲਟੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕੋਈ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ORS ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਕਾਕਾ ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਗੂ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਜਥਾ 101 ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਾ ਕੋਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ। ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਣੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਔਰ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂੰ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रखना। सबसे पहले प्रेस के सभी साथियों का दोनों मोर्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप देश दुनिया के कोने कोने में हमारी हर बात को पहुंचा रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के संदेश को जो हर जगह आप पहुंचा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। साथियों, हमने जो कल कहा था, कल पीसी के बाद हमारी जो चिट्ठियां हैं, जो हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को जानी है, वो डिजिटल माध्यमों से भी चली गई और डाक के माध्यम से भी ये उनकी रिसिप्ट है। प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी चली गई है, लीडर ऑफ ओपोजिशन को भी चिट्ठी चली गई है, और राष्ट्रपति जी को जो चिट्ठी भेजी जाएगी, जैसा आदरणीय गुरिंदर सिंह बंगू जी ने कहा कि 16 तारीख को जब तमाम राज्यों में, पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में जब ट्रैक्टर मार्च होंगे, तो वहाँ पे एसडीएम और डीसी के माध्यम से 16 तारीख को वही चिट्ठी, उसी चिट्ठी की कॉपी जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपने खून से हस्ताक्षरित करके प्रधानमंत्री जी को लिखी है, उसी की कॉपी राष्ट्रपति जी के नाम भेजी जाएगी। आज से ही महिलाओं के बड़े बड़े जत्थे पंजाब के कोने कोने से मोर्चे पे आने शुरू हो गए हैं, और जो 16 तारीख को हमारा ट्रैक्टर मार्च है, वो पंजाब में अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि पंजाब के सारे किसानों, नौजवानों, महिलाओं की जो पूरी ड्यूटी है, पूरी जो ताकत है, वो खनौरी मोर्चे की पूरी पहरेदारी मजबूत करने के लिए लगा रखी है। हरियाणा के भी अलग अलग गांवों से लगातार हमारी टीमें आ रही हैं पूरे इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए। राजस्थान से भी आज हमारा बड़ा जत्था साथियों का आया है, नौजवानों का एक बड़ा जत्था आज हमारे नौजवान साथी हैं, उनके नेतृत्व में भी यहाँ पे आया है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा गंभीर स्टेज में पहुंच चुका है, और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो उनकी स्थिति है, उनको कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है, कभी भी किडनियां फेल हो सकती हैं। और हम फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं, जो कल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी को कुछ हुआ तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की होगी, वो इसके जिम्मेदार होंगे। स्थिति बहुत क्रिटिकल है, स्थिति बहुत गंभीर है, और 24/7 हमारी टीमें, खासकर रात को, आप मीडिया वाले साथियों ने भी देखा होगा, पूरी रात हमारी टीमें, नौजवानों की टीमें यहाँ पे पूरी ड्यूटी देती हैं, पूरी पहरेदारी करती हैं,
कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ लगा रखी है। और हम सरकार को ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कोई भी गुस्ताखी करने का प्रयास ना करें। अगर वो फोर्स का इस्तेमाल करके सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी तक का पहुंचने का प्रयास करेंगे तो उनकी तमाम कोशिशों को फेल किया जाएगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को उनके पास पहुंचने से पहले फोर्सेस को, सरकार को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। उससे पहले सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के करीब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी फोर्स को या किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। और आज जैसा मेरे से पहले मेरे बड़े वरिष्ठ साथियों ने कहा, आज देश के कोने कोने से जो किसान नेता हमारे आए हैं, हम उन सब का सत्कार करते हैं, हम उन सब का सम्मान करते हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल केएमएम तमाम दोनों फोरमों के नेतृत्व में, देश के किसानों के नेतृत्व में जो ये किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये हम सब की लड़ाई है, जिंदा जमीर के लोगों की लड़ाई है। और जिंदा जमीर के लोग देश के कोने कोने से यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में रोजाना पहुंच रहे हैं। हम विशेष तौर पे आदरणीय संत गोपाल दास जी का, जो बहुत लंबे समय तक उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर अनशन किए हैं, आज वो भी डल्लेवाल साहब का हालचाल पूछने के लिए, देसी घी से डल्लेवाल साहब को मालिश करने के लिए, क्योंकि उससे आराम मिलता है जो आदमी अनशन पे होता है, वो आए, उन्होंने जो सेवा करी, विशेष तौर पे धन्यवाद है। रतवाड़ा साहब से संत महापुरुषों जी की पूरी जो एक पूरा प्रतिनिधिमंडल आया, उसका हम विशेष तौर पे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी रतवाड़ा साहब से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। वहाँ के पूरे संत महापुरुषों के साथ उनका बड़ा एक अच्छा रिश्ता है, बड़ा एक लगाव है। हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी, हरिंदर लखोवाल जी, मनजीत सिंह धनेर जी, मनजीत सिंह राय जी, बूटा सिंह शादीपुर जी, जंगवीर सिंह चौहान जी, सतनाम सिंह साहनी जी, होशियार सिंह गिल हरियाणा से, जगदीप सिंह औलख जी हरियाणा से, बिंदर सिंह गोलेवाड़ा, सुखविंदर सिंह औलख हरियाणा से, कुलदीप सिंह बजीदपुर, भाना सिद्धू, रविंदर चीमा प्रधान आड़ती एसोसिएशन, तरसेम सैनी प्रधान सेलर्स एसोसिएशन, और भी जो अन्य हमारे सम्मानित किसान नेता और जो खापों के प्रतिनिधि आए हैं, हम उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगर किसी साथी का नाम छूट गया हो तो उसके लिए भी हम माफी मांगते हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर किसी मीडिया वाले साथी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। ऐसा आवाज आए हैं कि बातचीत हुई है, क्योंकि समर्थन देने के लिए तो पूरा लोग जानना चाहते हैं कि सभी लोग एक मंच पर इकट्ठा क्यों नहीं होते। देखिए, आज जो पूरा प्रतिनिधिमंडल अलग अलग संगठनों का आया था, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत का हालचाल पूछने के लिए और उनको अपना समर्थन देने के लिए आए थे। और जैसा मैंने कहा और मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने भी कहा, हम सबका सत्कार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। देखिए, राकेश टिकैत जी और बाकी सभी जो लीडर हैं वो सब सम्मान के योग्य हैं। आप सब ने देखा है कि जब 13 फरवरी से यहाँ से किसान जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे, अपने देश की राजधानी है, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ प्रधानमंत्री आवास और अन्य बड़े बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों की जो बिल्डिंग है, जो उनकी रिहाइश बनी हुई है, वो भी मालचा गांव, जो किसानों का गांव होता था दिल्ली में, उसकी जमीन पे बनी हुई है और उन किसानों को विस्थापित किया गया था। लेकिन 13 फरवरी से ही किसानों को अपने देश की राजधानी नहीं जाने दिया जा रहा। पहले कहा जाता था आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के चले जाइए, गाड़ियों में चले जाइए, रेल में चले जाइए, पैदल चले जाइए। लेकिन 6 तारीख से दोनों मोर्चों की रणनीति के अनुसार, जैसे पैदल जत्थे शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के जत्थों ने जाने का प्रयास किया, उनके ऊपर भी किस तरीके की ज्यादती हुई है वो सब ने देखा है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सरकार का असली चेहरा और चरित्र सबके सामने है। ये सरकार देश के किसानों को अपने देश की राजधानी नहीं जाने देना चाहती। ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 700 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ? देखिए, जो भाजपा के नेता हैं, ये भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जो बयान दिया है, ये अति निंदनीय है। रामचंद्र जांगड़ा जी को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि किसान मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी पूजा करता हूं। दूसरी तरफ उनके नेता पिछले 5-6 सालों से लगातार इस तरीके की घिनौनी बयानबाजी कर रहे हैं।
मैं पूछना चाह रहा हूं रामचंद्र जांगड़ा जी से आप सबके माध्यम से, वो कहते हैं कि 700 लड़कियां गायब होगी पिछले आंदोलन के दौरान, ऐसा उन्होंने झूठा आरोप लगाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उस समय हरियाणा में किसकी सरकार थी? आपकी ही सरकार थी। अगर 700 लड़कियां गायब हुई तो उनकी एफआईआर कहां पे है? और अगर एफआईआर नहीं है तो इसका मतलब आपकी सरकार का फेलियर है। जो 700 लड़कियां गायब हुई, आप उनकी लिस्ट जनता के सामने, मीडिया के सामने लेके आइए। आप एफआईआर की कॉपी मीडिया के सामने लेके आइए। और अगर आप नहीं ला सकते तो आपको इस देश के किसानों से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह देश का किसान मजदूर समाज भाजपा के इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा। और हम ये कहते हैं, हमें तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी की मौन सहमति के साथ भाजपा के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऐसी गंदी बयानबाजी करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मौन सहमति नहीं है तो प्रधानमंत्री जी को रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनको बाहर निकालना चाहिए। और दूसरी बात, रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं कि पिछले आंदोलन से नशा आ गया हरियाणा में। हम उनसे यह पूछना चाह रहे हैं कि गुजरात में पिछले 25 सालों से किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मुंड्रा पोर्ट से 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। उसके बाद बड़ी बड़ी खेपें गुजरात के बंदरगाहों पे पकड़ी जा रही हैं। जो बंदरगाह कई तो ऐसी हैं जो इस मोदी सरकार के करीबियों के कंट्रोल में है। तो अगर इस देश में नशा आ रहा है और नशा जवानी किसानी को बर्बाद कर रहा है, तो ज्यादातर नशा गुजरात के बंदरगाहों से, वहां के पोर्टों से आ रहा है। इस सरकार ने उसको रोकने के लिए क्या काम किया है? यह जवाब इस सरकार को देना चाहिए। यह गैर जरूरी और घिनौनी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ जी ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਲਖੂਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇਣ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? आप ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੈਠਾਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਗੈਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਦੋਰੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਲਖੂਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। बहन जी सवाल था जी। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਉਹ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। देखो, हो सकता है आदरणीय राकेश टिकैत जी भविष्यवाणी अच्छी करते हो, तो हो सकता है। हम तो ये कहते हैं कि देखिए, हमारे लिए तो आप 3-4 महीने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो एक एक पल बड़ी चिंता का पल है। कोई भी किसान नेता दोनों मोर्चों में से, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल में से और किसान मजदूर मोर्चा में से, सोता नहीं है। रात को पहरेदारी करते हैं। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज एक तरीके से कहते हैं ना कि बिल्कुल मृत्यु के दरवाजे पे खड़े हैं, शहादत होने के, मौत के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं। तो हमारे लिए तो एक एक सेकंड बड़ा भारी है। और हम तो इसीलिए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कल जो ओपन चिट्ठी लिखी है उसमें ये कहा है कि सरकार इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। 3-4 महीने में तो मुझे लगता है कि हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के बाद जो अगले किसान नेता हैं जिनको आमरण अनशन शुरू करना है, सुखजीत सिंह हरदो झंडे जी हैं, जिन्होंने पहले 5 दिन भी किया। मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में तो हमारे कई किसानों की कुर्बानी हो जाएगी। ਅਭਿਮਨੂ ਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ सेंटर सरकार से। मुझे आप एक बात बताइए, मैं आप मेरे बड़े सत्कार योग्य हैं, बड़े आदरणीय हैं, लोगों ने चुन के सरकार में किसको बैठाया है? जो लोग आज रवनीत बिट्टू जी और बाकी मंत्री बैठे हैं उन्होंने बैठाया है ना। हम तो प्रधानमंत्री जी को अपनी चिट्ठी भेज चुके हैं। उनको अगर सच में वो बातचीत करना चाहते हैं, सच में वो मिलना चाहते हैं, तो वो मीटिंग का डेट फाइनल करें, मीटिंग की जगह फाइनल करें और एक लिखित चिट्ठी हमें भेजें। अगर रवनीत बिट्टू जी को प्रधानमंत्री जी का मैंडेट है कि आप इनकी मांगों को पूरा कीजिए, और कोई भी जिम्मेदार आदमी अगर मैंडेट के साथ बात करना चाहता है,
तो हम रात को 12 बजे भी बात करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, आपका सवाल था। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत बहुत जरूरी है, ये सही बात है। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो कहा कल चिट्ठी में कि 1994 से लेके अब तक ऑन रिकॉर्ड 5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, ऑफ रिकॉर्ड 10 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को लगता है, दोनों फोरमों के नेताओं को लगता है कि हम नेताओं से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारे किसानों और मजदूरों की जिंदगियां हैं, और उन किसानों मजदूरों की जिंदगियों को बचाने के लिए ही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने यह आमरण अनशन शुरू किया है, जो आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बयान जो हमने भी पढ़ा, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी कही गई है कि ये गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, सरकार किसी भी तरह की हिंसा करने का प्रयास ना करे, किसी भी तरीके की फोर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। यानी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को भी आईना दिखाया। 13 फरवरी से ही ये सरकार लगातार इस आंदोलन के ऊपर वायलेंस कर रही है, हिंसा कर रही है। 433 किसान पहले घायल किए थे और 6 और 8 तारीख को हमारे 25 किसान शंभू बॉर्डर पे भी घायल कर दिए गए। और मेरी अंत में ये जरूर प्रार्थना है, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट हम सबके लिए सम्मान के योग्य है, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय 2015 में जब हमारे किसान साथियों ने मुकदमा किया था, एक पेटिशन फाइल करी थी कि ना तो कांग्रेस ने ना बीजेपी ने, वादे तो किए थे उन्होंने, लेकिन दोनों में से किसी ने स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू नहीं किया, और केंद्र सरकार ने उस समय हलफनामा दिया था कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय कहता कि नहीं, अगर वो सरकार को आदेश देता कि आपने इनसे वादा किया है और आप इससे भाग नहीं सकते, ये आपकी कमिटमेंट है, आपको ये लागू करना पड़ेगा, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय ये हिदायत, ये निर्देश देता, तो शायद आज ये स्थिति, ये नौबत ना आती। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? देखिए, हमने कल ये स्पष्ट किया था, जो चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने लिखी है, उसी चिट्ठी की कॉपी, कोई अलग चिट्ठी नहीं लिखी हमने, उसी चिट्ठी की कॉपी विपक्ष के नेता को भेजी है, वो भी एक संवैधानिक पद है। उसी चिट्ठी की एज इट इज कॉपी 16 तारीख को SDM और DC के माध्यम से राष्ट्रपति जी को भेजी जाएगी। और जहां तक बात है कि भाई विपक्ष के सांसद, देखिए हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, 22 जुलाई को जब SKM नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल संसद के अंदर विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से मिला था, तो उस समय माननीय राहुल गांधी जी ने और उनके अन्य सांसदों ने हमसे ये वायदा किया था कि संसद के शीतकालीन सत्र में हम MSP गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल भी लेके आएंगे और इस पे जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन ना तो वो प्राइवेट बिल लेके आए और ना ही उतनी मजबूती से उन्होंने कोई आवाज उठाई है। बाकी काका सिंह कोटड़ा जी अगर कुछ इसमें ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਤਲੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪੁਤਲੇ ਦਾ 4 बजे अभी 4 ਵਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ।